A very long time ago, a maiden called Pandora lived on the earth. In those days, people only knew happiness, for there was no pain of any sort on the earth. Pandora should have been the happiest of them, for the gods had given many gifts to her ever since she had been born. She had beauty and wit, health, and good temper. Everything that, but Pandora was not happy about one thing. She had been given a wooden box tied with a golden cord by the king of gods. She was upset about it because she had been told to never open the box. What is the use of a box tied with a golden cord if you cannot open it, she thought. Every day, she would go to the box and look at it from all sides, trying to guess what could be in it. She wished and wished she could open it. One day, she could not bear her curiosity anymore. What if I opened it a little and took a peek? Pandora said to herself. What harm could that do? Her fingers went to the golden cord, and as she came closer to the box, she heard some voices. Open the box, Pandora, free us, Pandora. Help us, Pandora. The voices were coming from the box. Pandora was afraid. She took away her hand from the cord. But the voices continued call out to her. Finally, fearfully, Pandora untied the cord and lifted the lid of the box. Immediately, a swarm of ugly creatures flew out of the box. They bit Pandora everywhere, and for the first time, the girl felt pain and sorrow. With a cry, she dropped the lid of the box. But it was too late. The creatures were troubles. They flew away and spread across the world. With them came sorrow, pain, sickness, and suffering into the world. Pandora cried bitterly and thought that she should have never opened the box. She should have obeyed the king of gods. All of a sudden, she heard a sweet voice calling from the box. It said, Pandora, let me out. I will help you. But Pandora was afraid that it was another ugly creature. She said, No, I will not open the box. You will bring more unhappiness in the world. But the voice said kindly, Pandora, I am hope. I will help the people who are suffering in the world. Her voice sounded so kind that Pandora opened the box. Out flew a bright light. Inside it was a beautiful creature. It was not at all like the terrible things that had come out earlier. The moment Pandora saw Hope, her pain became less. Hope could not bring the troubles back into the box. They were in the world making people suffer, but wherever the troubles went, Hope followed them. She brought comfort to all who were sick and in pain. Hope still lives on earth spreading joy, and we cannot do without her. बहुत समय पहले पंडोरा नामक एक युवती पृथ्वी पर रहती थी। उन दिनों लोग केवल सुख ही जानते थे, क्योंकि पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था। पेंडोरा को उनमें से सबसे अधिक खुश होना चाहिए था, क्योंकि भगवान ने उसके जन्म के बाद से ही उसे कई उपहार दिए थे। उसके पास सुंदरता और बुद्धि, स्वास्थ्य और अच्छा स्वभाव था। वह सब कुछ, लेकिन पंडोरा एक बात से खुश नहीं थी। उसे देवताओं के राजा ने सोने की डोरी से बंधा हुआ एक था। वह इस बात से परेशान थी, क्योंकि उससे कहा गया था कि वह बक्सा कभी न खोले। उसने सोचा, सोने की डोरी से बंधे बक्से का क्या उपयोग यदि आप उसे खोल नहीं सकते। हर दिन वह बक्से के पास जाती और उसे चारों ओर से देखकर यह अनुमान लगाने की कोशिश करती कि इसमें क्या हो सकता है। वह चाहती थी और काश वह इसे खोल पाती। एक दिन वह अपनी जिज्ञासा को सहन नहीं कर सकी। क्या होगा अगर मैंने इसे थोड़ा खोला और झांक कर देखा, तो इससे क्या नुकसान हो सकता है?
उसकी उंगलियां सोने की डोरी पर गईं और जैसे ही वह डिब्बे के करीब पहुंची, उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। बॉक्स खोलो पेंडोरा, हमें मुक्त करो पेंडोरा, हमारी मदद करो पेंडोरा। आवाजें डिब्बे से आ रही थीं। पंडोरा डर गया। उसने अपना हाथ डोरी से हटा लिया, लेकिन आवाजें उसे पुकारती रहीं। अंत में भयभीत होकर भानुमती रस्सी खोली और बक्से का ढक्कन उठाया। तुरंत बदसूरत प्राणियों का एक झुंड बक्से से बाहर उड़ गया। उन्होंने पेंडोरा को हर जगह काटा और पहली बार लड़की को दर्द और दुरख महसूस हुआ। चिल्लाकर उसने डिब्बे का ढक्कन गिरा दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जीव जंतु संकटग्रस्त थे। वे उड़ गए और दुनिया भर में फैल गए। उनके साथ दुनिया में दुख, दर्द, बीमारी और पीड़ाएं आईं। पेंडोरा फूट फूट कर रोने लगी और उसने सोचा कि उसे कभी भी बक्सा नहीं खोलना चाहिए था। उसे देवताओं के राजा की रस्सी खोली और बक्से का ढक्कन उठाया। तुरंत बदसूरत प्राणियों का एक झुंड बक्से से बाहर उड़ गया। उन्होंने पेंडोरा को हर जगह काटा और पहली बार लड़की को दर्द और दुरख महसूस हुआ। चिल्लाकर उसने डिब्बे का ढक्कन गिरा दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जीव जंतु संकटग्रस्त थे। वे उड़ गए और दुनिया भर में फैल गए। उनके साथ दुनिया में दुख, दर्द, बीमारी और पीड़ाएं आईं। पेंडोरा फूट फूट कर रोने लगी और उसने सोचा कि उसे कभी भी बक्सा नहीं खोलना चाहिए था। उसे देवताओं के राजा की आज्ञा माननी चाहिए थी। अचानक उसे एक मीठी आवाज सुनाई दी, बॉक्स से वॉइस कॉलिंग। इसमें कहा गया, पेंडोरा ने मुझे बाहर जाने दिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन पेंडोरा को डर था कि यह एक और बदसूरत प्राणी था। उसने कहा, नहीं, मैं बक्सा नहीं खोलूंगी। आप दुनिया में और अधिक दुख लाएंगे। लेकिन आवाज ने दयालुता से कहा, पेंडोरा, मैं आशा हूँ। मैं दुनिया में पीड़ित लोगों की मदद करूंगा। उसकी आवाज इतनी दयालु थी कि पेंडोरा ने बक्सा खोल दिया। बाहर एक तेज रोशनी उड़ी। उसके अंदर एक सुंदर प्राणी था। यह बिल्कुल भी उन भयानक चीजों की तरह नहीं था जो कार्ल से पहले सामने आई थीं। जैसे ही पेंडोरा ने होप को देखा, उसका दर्द कम हो गया। आशा मुसीबतों को बॉक्स में वापस नहीं ला सकी। वे संसार में लोगों को कष्ट पहुंचा रहे थे, परंतु जहां कहीं भी मुसीबतें गईं, आशा ने उनका पीछा किया। उसने उन सभी को सांत्वना दी जो बीमार और पीड़ा में थे। आशा अभी भी पृथ्वी पर खुशियां फैलाती हुई जीवित है और हम उसके बिना नहीं रह सकते।